पर अमलावरी का मुतालबा करते हुए कुल जमाती इजलास मुनक्किद किया गया। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से हैदराबाद के सुमाजी गोड़ा में प्रेस क्लब में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अलावा बीजेपी, टीजेएस और दीगर समाजी कारकुनों ने शिरकत की। कांग्रेस एमएलसी जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के वजीर आला केसीआर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नजरअंदाज करते हुए बीसी रिजर्वेशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि केसीआर ने इक़्तिदार पर आने के बाद बीसीज को 45% रिजर्वेशन देने का वादा किया था। अब इस रिजर्वेशन को घटाकर 34% किया जा रहा है। इस इजलास से बीजेपी लीडर बंडारू दत्तात्रेय के अलावा आर कृष्णैया व दीगर ने भी खिताब किया। మించకూడదు అని చెప్పని నిర్దేశిత న్యాయ సూత్రాలు చెప్పని ఒక సాకు అడ్డు పెట్టుకొని ఇవాళ ఎన్నికల్లో ముందుకు పోతున్నటువంటి ఈ తరుణంలో కొన్ని వాస్తవాలు వెలికి రావాల్సినటువంటి ఒక ఆవశ్యకత ఉన్నది. ఇదేదైతుందో దయచేసి గమనించాల్సింది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఈ సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వు అనే నెపంతో వీళ్ళ బలహీన వర్గాల హక్కులను మరి ఏ విధంగా అణదొక్కుతుంది అనేది దయచేసి గమనించాలంటున్నాను. ముఖ్యమంత్రి గారికి ఏమాత్రం కూడా సామాజికమైనటువంటి స్పృహ లేకుండా ఆయన తన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా రిజర్వేషన్లు నిర్ణయించేటువంటి హక్కు ముఖ్యమంత్రికి ఎవరిచ్చారని నేను ఈ సభాముఖంగా తప్పకుండా అడుగుతా ఉన్నాను. ఏదైనా ఒక సాంప్రదాయం ఉండాలి. ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక సాంప్రదాయం ఉంటుంది. ముఖ్యమైన విషయం వచ్చినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ పెడతాడు. కానీ ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ లేదు, లెజిస్లేచర్ పార్టీ మీటింగ్ లేదు. ఆయన ఏకపక్షంగా ఏదైతే ఈ 34% గతంలో ఉన్నటువంటిది 23% తీసుకొచ్చిండో, ఇది పూర్తిగా ఏ రకంగా అయినా కూడా బీసీలను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అనగదొక్కాలనేటువంటి మనస్తత్వము ముఖ్యమంత్రికి స్పష్టంగా కనపడుతుందని నేను ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కొని బతకాలి అంటే అయ్యే పని కాదది. రాజకీయంగా కూడా ఎదగటం అనేది చాలా కీలకం. ఆ నాయకత్వం అనేది మనకు దెబ్బతింటుంది. కానీ రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితి మనము రెండింటిని స్థూలంగా గ్రహించాలి. మొదటి విషయం ఏంటంటే, మనం ఎన్ని సప్లాన్స్ పెట్టినా, కొట్లాడి ఎన్ని హక్కులు సాధించినా మనకు రావాల్సిన నిధులు మనకు వస్తలేవు. మనం అందరం అడుగుతున్నాం, బీసీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్లు బోల్డ్ అని ఉన్నాయి, నిధులు ఇవ్వండి, లోన్లు మంజూరు చేయండి అని. ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ విషయం పైన గవర్నమెంట్ నుంచి స్పందన లేదు. రాజకీయ ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడే అంశాలు, లాభపడే అంశాల మీద దృష్టి పెడుతున్నారు తప్ప ఈ సమాజంలో సమాజం సామాజిక న్యాయం, దోపిడీ, పీడన, వివక్షత, అసమానతలు, అణచివేతలైనటువంటి ఒక నవ సమాజ నిర్మాణం కోసం కొత్త సంస్కరణలు తీసుకురావాలనేటువంటి ఆలోచన ముఖ్యమంత్రికి కోశాన లేదు. ఒకే బీసీ ఒకే రూల్ అందరికీ ఉండాలి. ఇది నేను ప్రధానమంత్రి మోడీ గారికి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. చాలా కన్ఫ్యూషన్ ఉంది. మీరు తలుచుకుంటే మీరు ఏదైనా చేయవచ్చు. దానికి ఉదాహరణ మొన్న ఆర్టికల్ 370, 350, 35 అబాలిష్ చేయడం. మనసు ఉంటే మార్గం ఉంది. जिस्मानी आज़ा के अतिया पर हैदराबाद में शौर बेदारी रैली निकाली गई। हर्ले डेविडसन और ग्रीटिंग फ्रेम CII यंग इंडिया के ताउन से शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। ये रैली बंजारा हिल्स ता श्रीसेलम तक निकाली गई। 13 अगस्त को हर साल आलमी यौम जिस्मानी आज़ा का अतिया मनाया जाता है। इससे मुताल्लिक अवाम में बेदारी पैदा की जाती है। रैली के मुंतज़मीन ने बताया है कि मुल्क भर में जिस्मानी आज़ा की अतिया से मुतालिक अवाम में शऊर बेदार किया जा रहा है, जिसके लिए मुल्क के बड़े शहरों में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। ఆయన అవయవాలు 8 మందికి ప్రాణం పోస్తాయి. ఇది ఒకే ఒక్క గొప్ప ఆచారం మనం పాటించగలం. ఏమంటే, ఒక మనిషి పోతే 8 మందికి ప్రాణం పోయగలరు. మనం పైకి పోయిన స్వర్గానికి చేరినా కూడా మన అవయవాలు ఇంకొక 8 మందిలోని ప్రాణం పోసి వాళ్ళకి ఇక్కడే బతుకుంటాయి. ఇది అవయవ దినోత్సవం. సో వీఆర్ రన్నింగ్ వీక్ లాంగ్ క్యాంపెయిన్ ఆన్ గిఫ్ట్ అండ్ ఆర్గన్ డొనేషన్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు కాలేజెస్, వీఆర్ గోయింగ్ టు స్కూల్స్, అండ్ దిస్ ఈజ్ రైడింగ్ with the Harley Davidson group is one of the ways in which we are spreading awareness on organ donation. We are also we are also in touch with Apollo hospitals, many other hospitals and corporates wherein we are doing several campaigns and spreading awareness about organ donation. And
भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द तेलंगाना में भी इख्तिदार पर आएगी, ये कहना है मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी का। हैदराबाद में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत के मौके पर उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर किशन रेड्डी ने आर्टिकल 370 और तलाक सलासा पर भी हुकूमत की पॉलिसियों को वाजे किया। इन्होंने कहा कि 3 तलाक अब कानून बन गया है। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुस्लिम खवातीन को इंसाफ दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్లు చాలా చరిత్రాత్మకమైనటువంటి బిల్లు. 2 సార్లు గతంలో పాస్ చేస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజ్యసభలో అడ్డుకోవడం జరిగింది. ఈసారి రాజ్యసభలో కూడా పూర్తి స్థాయి మెజార్టీ తోటి అనేకమైనటువంటి బిల్స్ పాస్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఈరోజు ముస్లిం మహిళలలో నరేంద్ర మోడీ గారి పట్ల, భారతీయ జనతా పార్టీ పట్ల సానుకూలమైనటువంటి వాతావరణం. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకు అనుకూలంగా మలుచుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. తలాక్ బిల్లు, తలాక్ దీనికి వ్యతిరేకంగా ఏదైతే ఈరోజు మన బిల్లు ప్రవేశపెట్టామో, మహిళలలో, ముస్లిం మహిళలలో ఒక సానుకూలమైనటువంటి వాతావరణం. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు చట్టమైనవి. तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, जहां पर तमाम मज़ाहिब के लोग खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ तेलुगु यूनिवर्सिटी में तेलंगाना विकास समिति के 30वें सालाना इजलास से खिताब के दौरान केटीआर ने ये बात कही। उन्होंने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का भी इजहार किया। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में इख्तिलाफ राय की आज़ादी है, जमहूरियत में मुखालिफत और एतराज़ आम बात है। जब तक मजहब और सियासत को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, उस वक्त तक सेकुलरिज्म को खतरा बरकरार रहेगा। హక్కు, ప్రశ్నించే పరిస్థితి లేకపోతే ప్రజాస్వామ్య మనుగడే ప్రమాదంలో పడుతుందనే మాట కూడా వారు కూడా చెప్పారు. మనకు కవులే చూసినట్టయితే ఒక్కసారి మనం కవుల గురించి, మన తెలంగాణ కవుల గురించి ఆలోచిస్తే దాశరథి గారు కానీ, సినారయ్య గారు కానీ, వారు కూడా ఉర్దూలో బ్రహ్మాండమైన గొప్ప కవిత్వం రాసిన వారు. గజల్ కానీ, రుబాయి కానీ ఇలాంటి ప్రక్రియలను తెలుగులోకి అనువదించారు, తీసుకొచ్చారు. ఈరోజు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిణామాల కారణం ఏమంటే, ఒక మతాన్ని ముద్దు చేయమని కూడా అక్కడ చెప్పలేదు, మతాన్ని రద్దులు అనలేదు, మతాన్ని ముద్దు చేయమని కూడా చెప్పలేదు. సెక్యులర్ స్టేట్ అంటే పరస్పరం ఒకరి విశ్వాసాలని ఒకరు గౌరవిస్తూ, ఒకరి మత సాంప్రదాయాలు కానీ, ఆధ్యాత్మిక భావనలు కానీ, విశ్వాసాలు కానీ అవన్నింటినీ గౌరవిస్తూనే ఒకరితో ఒకరు పరస్పరం సహనంతో మనుగడ సాగించాలనే ఉద్దేశంతో చెప్పిన మాట ఏదైతుందో దానికి భిన్నమైన సందర్భాలు ఎన్నో ఈ సందర్భంలో నేను గుర్తు చేసుకుంటా ఉన్నాను. सियासी लीडरों के दल बदल का सिलसिला जारी है। 2 दिन कबल पैदापल्ली के साबिक रुकन पार्लियामेंट विवेक बी बीजेपी में शामिल हो गए हैं और अब साबिक रियासती वजीर व तेलुगु देशम लीडर एम नरसिम्लू बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी और तेलंगाना बीजेपी के सदर लक्ष्मण ने एम नरसिम्लू के घर पहुंचकर उन्हें बीजेपी में शामिल होने का मशवरा दिया। 18 अगस्त को बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट जेपी नड्डा हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं। इम्कान है कि एम नरसिम्लू जेपी नड्डा की क़यादत में बीजेपी में शामिल होंगे। और अब बात ईद उल अज़हा की। इस साल ईद उल अज़हा की कुर्बानी के लिए तेलंगाना नस्ल के बकरे हैदराबादियों की पहली पसंद हैं। इस बार हैदराबाद में ईद उल अज़हा के मौके पर बाजार में तेलंगाना के अलावा पड़ोसी रियासतों कर्नाटक और महाराष्ट्र से लाए गए बकरे भी फरोख्त के लिए रखे गए हैं। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर कुर्बानी के बकरों की खरीदो फरोख्त जोरों शोर से जारी है। ईद के लिए अपनी पसंद का जानवर खरीदना और उसे अपने घर पर लाना, इसकी कुर्बानी करना हैदराबादियों को बहुत पसंद है। हर साल की तरह इस साल भी मुख्तलिफ नस्ल के बकरे बाजार में दस्तयाब हैं, लेकिन दरमियाने कद के तेलंगाना नस्ल के बकरे खरीदारों की पहली पसंद है। तो आपको जो है सब बकरे थोड़ा रेटा बढ़े हुए हैं और ये मैं 7,500 में लिया। कितने किलो है ये करीब 12-13 किलो ही निकलता है, इसमें बस नहीं निकला। बात किलो का नहीं है, बात कुर्बानी की है। अच्छा जानदार बकरा है, तेलंगाना का है, ये कर्नाटक का है, गुलबर्गा का है बकरा। And we are just looking at the market, what's the price, and trying to select the best what's for it. तो कैसा दिख रहा है आपको बकरा? Well, I'm here after 4 years, so still the experience is same, and the prices are a bit up and down due to weather, I believe. तेलंगाना के बकरों की डिमांड को देखते हुए ताजरीन भी ज्यादातर इसी नस्ल के बकरों को यहाँ लेकर आए हैं।
यहाँ तक कि कर्नाटक के अजला, बीदर और गुलबर्गा के ताजरीन भी हैदराबादियों के ज़ौक़ को मद्देनजर रखते हुए खुद अफजाइश किए हुए इसी नस्ल के बकरे फरोख्त के लिए पेश कर रहे हैं। ये हमारे फार्म के आंध्रा तेलंगाना की मिक्स और कर्नाटक के भी है इसमें। तो ये नस्ल जरा बड़ी नस्ल दिख रही है, सिंगा भी फिर जी हाँ, ये 3 से 4 साल के बकरे, 2 साल के भी है इसमें। रेटा बड़े हुए। तो आपका ये एवरेज कितने किलो के रहते हैं और रेट क्या लगा रहे हैं? ये बकरे 20-22 किलो के ऊपर के रहते हैं और 15-16 हज़ार से स्टार्टिंग है। मार्केट तो फिलहाल रेट हमेशा जैसा मिलता था वैसा नहीं है, रेट बहुत ज़्यादा महंगा, हम लोग खरीदी ही महंगी पड़ी, तो वो हिसाब से चल रहा है। अब जैसा चल रहा चला रहे, बिस्मिल्लाह। तो ये कौन सी नस्ल के बकरे हैं आपका? ये प्योर पोटला है, तेलंगाना का पोटला है। तो ऐसा दिख रहा है इस बार तेलंगाना पोटला बहुत डिमांड में है। माल ही नहीं है ना साहब, माल नहीं है बोल के डिमांड में है। कितने दिन पहले ये 18 किलो के बकरा हम लोग 14,000, 15,000, 20,000 तक भी दे रहे हैं एक बकरा। कैसा कितने लाया बकरे अभी तक, कितने बिके? अब हम लोग 200 बकरा लेके आए, अब ये बच्चे है, अब 100 बिक गए। खास तौर पर कुर्बानी के लिए लगाए गए हैदराबाद के बाजारों में तेलंगाना नस्ल के बकरों के अलावा दूसरी नस्ल के बकरे भी दस्तयाब हैं। इसके अलावा शौकीन ग्राहकों के लिए अबलग, जस्सी, नायाब नस्ल के बकरे भी फरोख्त के लिए रखे गए हैं। ये साल रेट ज़्यादा है सब, ज्यादा है। 1000 रुपये चंपा है बकरे। एक जोड़ी कैसा दे रहे हैं आप? जोड़ी दे रहे 17,000, 18,000, 20,000, 16,000, अच्छा 15,000। अगर 20,000 का बकरा है तो एक एक बकरे में कितना किलो का रहता है एक बकरा? आएगा 17-18। हाँ। तो आप जो लाए ये क्या है, ये कौन सी किस्म है, ये इसकी नस्ल का नाम क्या है? ये बकरा है साहब, ये मेना बोलते इसे, पोटला। ये कुर्बानी का खायश का बकरा है। ये अबलग बकरा है, ये बहुत कम नस्ल के रहते हैं, बहुत ये लोग को बहुत डेलिकेटेड देखना रहता। अभी इसका प्राइस जो है 45,000 लगा रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह 30। कितनी उम्र का है ये, कब से पाल रहे हैं आप इसको? ये मैं बचपन से पाल रहा हूँ इसको, इसकी 1.5 साल उम्र है अभी। तो कितने दिनों से तैयारी करते हैं आप इसकी? साहब इसका तो 15-20 दिन से स्टार्टिंग करते साहब, तो खरीद के लेके आके काट के फिर हम लोग पीसेस करके लेके आते साहब। हर साल करते हैं? हर साल करते साहब। और यहीं लगाते थे? इधर ही लगाते साहब। पिछला साल कितने बेचे थे? लास्ट ईयर कितने बेचे आप? लास्ट ईयर साहब 15,000 बेचे साहब, 15,000 बेचे। 15,000 बेचे? हाँ पूरा बहुत बेचे साहब। कारोबार करे? हाँ कारोबार करे साहब। इस बार का कितना एक्सपेक्टेशन है? नहीं मालूम साहब, वो गेस नहीं कर सकते, पब्लिक के ऊपर है जो भी है। तो ये पूरा माल बेचे था, वो कितने पैसे आते? सब आते 12-13 हज़ार रुपये आते साहब। हैदराबाद में कुर्बानी के लिए बकरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला 3-4 रोज पहले से ही शुरू हो चुका है। ताजरीन को तवक्को है कि इनके सारे बकरे आज रात तक बिक जाएंगे और अपने लिए मुनासिब कुर्बानी के जानवर की तलाश करने वालों को उम्मीद है कि इन्हें भी अपनी पसंद का बकरा मिल जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। హ్యాపీ శ్రావణ మాసం మార్కెట్లో అందరికన్నా Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक जूम। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद खास बात आंध्र प्रदेश में आपका इस्तकबाल करते हैं। पहले नजर सुर्खियों पर। विजयवाड़ा की गौशाला में 100 से ज्यादा गायों की मौत, पोस्टमार्टम में मिले जहर के असरात। तेलंगाना बीजेपी लीडरान ने बताया साजिश, जांच का किया ऐलान। पुलिस की 2 क्लोजर टीमें पहुंची गौशाला, गायों की हलाकत की तहकीकात शुरू, कसूरवारों को नहीं बख्शा जाएगा, पुलिस कमिश्नर का बयान। ताड़ेपल्ली में वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की रिहायशगाह के बाहर कंप्यूटर टीचर्स का एहतजाज, निसाब में कंप्यूटर एजुकेशन को शामिल करने का मुतालबा। नंदीगाम में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मुकाबला, नूरुद्दीन ने मारी बाजी, 51 सेकंड में 101 पुशअप लगाकर बनाया नया रिकॉर्ड। विजयवाड़ा के मुजफ्फराती इलाके की एक गौशाला में 100 से ज्यादा गायों की मौत के बाद इस मामले को लेकर कुछ लोगों ने सियासत शुरू कर दी है। दूसरी जानिब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महलूक गायों के पेट में सिर्फ हरी घास पाई गई है। बताया जा रहा है कि जहरीले असरात की वजह से गायों की मौत हुई है। इतलात के मुताबिक जुमे की शाम गौशाला मुंतजिमीन ने घास जिला प्रकाशम के अदनकी से खरीदी थी। घास की काश्त में ज्यादा मकदार में कीड़े मार दवा इस्तेमाल किए जाने की इत्तलात हैं। याद रहे कि कल कृष्णा जिला कलेक्टर इम्तियाज अली की गौशाला आमद पर गौशाला के मुंतजमीन एक दूसरे से झगड़ रहे थे। मुंतजमीन गायों की मौत के लिए एक दूसरे को मौरद इल्जाम ठहरा रहे थे। उधर तेलंगाना की बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने गायों की मौत को साजिश करार दिया और ताड़ेपल्ली जाकर पूरी जांच का ऐलान किया है। विजयवाड़ा की गौशाला में गायों की हलाकत की तहकीकात तेज कर दी गई है। विजयवाड़ा सिटी पुलिस कमिश्नर की क़यादत में तहकीकात शुरू हो गई। पुलिस ड्रोन कैमरों की मदद से गौशाला और उसके अतराफ के इलाकों की छानबीन कर रही है। 2 क्लोजर टीमें गौशाला पहुंच गई हैं और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही हैं। पुलिस ने कसूरवारों को कड़ी से कड़ी सजा देने का ऐलान किया है। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की रिहाइशगाह के बाहर कंप्यूटर टीचर्स ने धरना दिया। ताड़ेपल्ली में भारत माता मुजस्समे के करीब एहतजाज किया गया। एहतजाजी टीचर्स का कहना है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। इसके अलावा एहतजाजी टीचर्स ने सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर की तालीम को शामिल करने पर जोर दिया। पुलिस ने बैरिकेड्स को पार करते हुए एहतजाज करने वाले कंप्यूटर टीचर्स को हिरासत में लेकर करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया।
कृष्णा जिले के नंदीगाम में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मुकाबले मुनक्किद हुए। नूरुद्दीन नामी नौजवान ने 51 सेकंड में 101 पुशअप लगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। नूरुद्दीन ने ये रिकॉर्ड 200 से ज्यादा अफराद की मौजूदगी में अपने नाम किया। इस मौके पर नंदीगाम डीएसपी के अलावा गेजेटेड ऑफिसर्स व दीगर मौजूद रहे। नूरुद्दीन ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होने पर खुशी का इजहार किया। वॉक फाउंडेशन की 13वीं सालाना तकरीब के मौके पर माजूरों में साइकिलें और मसनूई पैर तकसीम किए गए। माजूरों को फैमिली हेल्थ कार्ड भी जारी किया गया। गुंटूर में मुनक्किदा तकरीब में रुकन असम्बली मुस्तफ़ा के अलावा जिला कलेक्टर और वॉक फाउंडेशन के मेंबर्स व दीगर मौजूद रहे। रुकन असम्बली मुस्तफ़ा ने वॉक फाउंडेशन की सताइश की और कहा कि समाज में रहने वाले हर शख्स को चाहिए कि वो माजूरों की खिदमत के लिए आगे आएँ। జీవితంలో చాలా మంది డబ్బులు సంపాదిస్తుంటారు. ఎన్ని ఎకరాలు సంపాదించాం అనుకుంటారు, ఎంత ఆస్తి సంపాదించాం అంకెలచ్చి లెక్కేసుకుంటారు. కానీ మనం పేదవాళ్ళకి ఏం సాయం చేసామనేది కూడా అది కూడా లెక్క రాసుకుంటే ఆ భగవంతుడి దయ వలన భగవంతుడు తప్పకుండా 100కి 100 మార్కులు పడతాయి అన్నమాట. అది తెలియని మార్కులు అన్నమాట. అందుకనే ప్రపంచంలో ఎవరైనా సరే ప్రేమ ఆప్యాయత పేదవాడికి చూసినప్పుడే నిజమైన మానవుడు అని చెప్పేసి నేను భావిస్తా. అందుకనే మా కలెక్టర్ గారు కూడా రాబోయే కాలంలో కూడా దివ్యాంగుల సమయం ఎవరు ఉన్నా కూడా సైకిల్ కానీ ప్రభుత్వం తరపు నుంచి కూడా నేను చాలా అంటే ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరున్నారు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళకు సాయం చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. వాళ్ళకు సాయం చేసే వాళ్ళు ఎవరు ప్రభుత్వం, తర్వాత కలెక్టర్ గారు, తర్వాత ప్రజాప్రతినిధులు। करनूल में एसडीपीआई की जानिब से यूएपीए और आरटीआई और आर्टिकल 370 के खिलाफ एहतजाज किया गया। करनूल कलेक्ट्रेट पर मुनक्किदा एहतजाज के दौरान मरकज़ के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाजी एसडीपीआई कारकुनों ने मरकज़ की नीयत पर सवाल उठाए। एसडीपीआई का कहना है कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत अक़लियतों के साथ सौतेला सलूक कर रही है। क्वाइट फैसिस्ट इंडिया जो मोमेंट चल रहा है, ये मोमेंट क्वाइट इंडिया जो अंग्रेजों के खिलाफ चला था उसकी एक लड़ी है। आज से 60 साल पहले जिस तरीके से अंग्रेजों ने कांग्रेस के पूरे कायदीन को जेल में डालकर पूरे इंडिया को एक जेल खाने में तब्दील किया गया था, उसी तरीके से आज कश्मीर को एक जेल खाने में तब्दील करके पूरे हिंदुस्तान में खौफ का माहौल लाते हुए यूएपीए में तरमीम करते हुए या नए को इख्तियारात देते हुए अपनी मर्जी चलाने की जो कोशिश हो रही है उसकी हम पुरजोर एहतजाज करते हैं। करनूल शहर के कदीम तरीन गवर्नमेंट कॉलेज में फ्रेशर्स डे तकरीब का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान ने शिरकत की। उन्होंने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि वो खूब मेहनत से तालीम हासिल करते हुए अपने वालिदैन और मुल्क का नाम रोशन करें। रियासत आंध्र प्रदेश के करनूल शहर में बीजेपी की मेंबरशिप मुहिम का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि बीजेपी मुस्लिम अक़लियतों की भलाई के लिए काफ़ी बड़े पैमाने पर काम कर रही है। इन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने मुस्लिम अक़लियतों की ख़वातीन की भलाई के लिए 3 तलाक बिल मंजूर किया और 370 मंजूर करके कश्मीरी अवाम के लिए काफ़ी बड़ा काम किया है। इन्होंने अक़लियतों से अपील की कि वो बड़े पैमाने पर बीजेपी में शामिल होकर मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। अरब कंट्रीज को नौकरी जाते हैं, उधर से फोन में तलाक बोल जाते हैं। उनका जिंदगी क्या खत्म होता है। हर एक मुसलमान भाई लोग का उन लोग को भी बेटी रखते, माँ भी रखते। माँ बेटी को हम कैसा देख लेते हैं, वाइफ को भी ऐसा देखने का हमारा फर्ज है। हत्या ने गलत करते हैं, गुस्सा में कौन सा भी गलत करे तो उनका जिंदगी खत्म होता बोल को मोदी साहब तलाक का रखेंगे। कश्मीर में
मुस्लिम लेडी इधर मुसलमान को शादी कर लेंगे तो नहीं, शादी कर ले तो प्रॉपर्टी सभी चल जाता है। अभी तुम कश्मीर का लेडी को इधर मुसलमान भाई लोग शादी कर सकते, हमारा बच्चे मुसलमान बच्चे को कश्मीर में दे सकते। विजयवाड़ा के सत्यनारायणापुर श्रीनगर कॉलोनी में कत्ल की वारदात से सनसनी मची हुई है। शौहर ने शक की बुनियाद पर अपनी ही बीवी का सर काटकर धड़ से अलहदा कर दिया। मकामी लोगों की चीखों पुकार के बाद शौहर ने करीबी पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। मकामी अफराद ने बताया कि गुज़िश्ता चंद दिनों से दोनों के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए थे। डीएसपी विजय कुमार ने मकाम वाक़े पहुंचकर तहक़ीक़ात शुरू कर दिया है। करनूल के रूरल पुलिस स्टेशन में डीएसपी फखरुद्दीन की जानिब से मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताया कि करनूल पुलिस ने आदि चोर को गिरफ्तार करके इसके पास से लाखों रुपए की लागत के सोने और चांदी के जेवरात को जब्त किया है। पिछले 9 साल से पुलिस इसकी तलाश में थी। डीएसपी ने पुलिस एहलकारों को इनामात से भी नवाजा। ఓర్వకల్లో 2019లో ఒక కేసు, ఇవన్నీ కూడా ఇంటిలో దొంగతనం చేయబడినవే. ఈ కేసు అన్నిటిలోనూ కూడా కర్నూలు రూరల్ ఇన్స్పెక్టర్ పవన్ కిషోర్ వాళ్ళ ఎస్ఐలు శంకరయ్య, ఈ ఓర్వకల్ ఎస్ఐ సుధాకర్ రెడ్డి వీళ్ళ స్పెషల్ టీం ఫామ్ చేసి దీంట్లో ఎఫర్ట్స్ పెట్టడం జరిగింది. దీంట్లో రూరల్ సిఐ గారు వాళ్ళ సిబ్బంది అందరూ చేసిన ఎఫర్ట్స్ వల్ల ఇతన్ని పట్టుకోవడము, ఈ 8 కేసుల్లో కూడా ప్రాపర్టీ ఇంటాక్ట్ గా దీంట్లో రికవరీ కావడం మంచి ఎఫర్ట్స్ వల్ల ఇది చేయగలిగారు. అదేవిధంగా దీంట్లో వర్క్ చేసిన ఏఎస్ఐ అయిన శంకర్ నాయక్, రంగారావు ప్రత్యేకంగా రివార్డ్స్ కూడా రికమెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।